یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا جو سٹانس ہے اور وہ ایران کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ جارحیت کی گئی ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب مذاکرات کی اس راہ وقت ہموار۔ خبر اگر کہیں گھوم رہی ہے تو وہ مڈل ایسٹ ہے، جہاں پوری دنیا کی نگاہیں ٹک چکی ہیں۔ اس وقت وہاں سے ہزاروں ایرانی اب تہران سے نکل کر سرکشت ٹھکانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ترکی جو برابر میں ہے اس کی طرف جانے والے لوگوں کی سنکھیا بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یعنی اسرائیل کی مار ایران کے اندر بہت زیادہ ہے، اور جو ایران کا شروعاتی ریٹیلیشن تھا وہ کمزور پڑ خبریں رہا اگر ہے۔ آپ دیکھیں گے تو خبریں تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی جو ہیں وہ ایران اسرائیل کے کانفلکٹ کی ہیں، اور وہ کانفلکٹ جو ہے وہ کسی صورت جسے کہتے ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ نہ اسرائیل جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ رک رہا ہے، اور نہ ہی ایران جو ہے وہ اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ عالمی میڈیا کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ ایران کو باوجود اس کے کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ اس کو ایگریسر کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کر اسرائیل رہا سے ہے۔ تباہی اور بربادی کی یہ تصویریں سامنے آنے کے بعد سی این این نے ایک تجزیہ شائع کیا ہے، اور سی این این کا یہ جو تجزیہ ہے، سی این این کی یہ جو رپورٹ ہے، پوری دنیا کو حیران کر دینے والی ہے، اور سب سے زیادہ اس میں اسرائیل پر سوال اٹھ رہا ہے۔ ایران کی طرف سے لگاتار جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایران پر حملے کا آغاز اسرائیل نے کیا تھا، اور اسرائیل نے حملہ کر کے سوچا تھا کہ ایران کی جو طاقت ہے، اس کی جو جنگی قوت ہے، اس کی جو عسکری صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایران کے بارے میں اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو درہم برہم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس لیے ایران جوابی کارروائی نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ اسرائیل کا تجزیہ سیدھے سے غلط ثابت ہوا، اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تیسرے دن کی ہے۔ ایران کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، یعنی 16 جون کی رات سے لے کر کے صبح تک ایران نے اسرائیل پر میزائل سے جو حملہ کیا ہے، تو اسرائیل کے مزید کئی شہر تباہ و برباد ہو گئے 13 ہیں۔ جون کو اسرائیل کی طرف سے جو ایران پر ایک حملہ کیا گیا، اس کے بعد سے جو پورا مڈل ایسٹ بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، وہ ایک بہت بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے، جس کو کہ کچھ مبصرین کے خیال میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا جو ہے ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور پاکستان جو کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، یہ جولائی 2025 میں اس کا سربراہ بھی بن جائے گا سیکورٹی کونسل کا، اور او آئی سی کا بھی اجلاس جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ اور جب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو انڈیا کی طرف سے ایک بہت منافقانہ کردار ادا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اس جنگ میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر آج ہم گفتگو ڈاکٹر کریں گے۔ ملیہ لودھی ہیں، فارمر پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یو این، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں واشنگٹن میں ٹوائس، ڈپلومیٹ، آتھر، رائٹر، ایڈیٹر۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیں، ہاؤ آر یو سینگ دا سچویشن؟ ملیٹریلی تو حالانکہ کنٹینیو کر رہا ہے، لیکن ایران کے لیے ڈزنٹ لک گڈ۔ آپ کسی اور لیول پہ اس کو دیکھتی ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ابیلٹی ہے ٹو stay in this conflict for long یا push back Israel؟ دیکھیں، ایران was cornered by American deception and lies۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے جو جھوٹ بولا، ان کو ایرانینز کو مذاکرات میں انوالو کیا، پھر یہ امپریشن دیا کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور یہ کہ کوئی ایسا حملہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ انیشلی ایران کو وقت لگا ٹو دین رسپونڈ، بیکاز ان کی اپنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ور للڈ انٹو دس اسٹیٹ آف مائنڈ۔ لیکن اس کے بعد جو مس کیلکولیشن امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اب تو ایران کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی تکڑی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے ایران از رسپونڈنگ، اور ابھی انہوں نے پرانے میسائلز استعمال کیے ہیں، اپنے پرانی جنریشن کے 5% آف their missile capability they've only used۔ ابھی ان کی جو ایڈوانسڈ میسائلز ہیں وہ انہوں نے ابھی ڈپلوائے نہیں کیے ہیں۔ امپورٹنس ہی رہ گئی ہے، مطلب آج کل کے دور میں بس یہی ہے معاملہ۔ ہم کہتے ہیں اس کی تو سمبولک امپورٹنس بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، جوکروں کا اجتماع جو ہے اس کو چھوڑیں آپ۔ میں مسلم امہ کی بات سن لیں، آج کوئی متمول ملک مسلمان ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنی پراپرٹی خرید سکیں۔
शहरियत हासिल कर सकें, वहां की लड़की से शादी कर सकें, अपने नाम पे कारोबार कर सकें। वेस्ट में जाके आप सब कुछ करते हैं, उनकी बच्चियों से शादियां करते हैं, नेशनैलिटी की भूख में वो आपको मिल भी जाती है, आप वहां कारोबार भी करते हैं, वहां आप अपनी इबादतगाहें भी बनाते हैं, फिर आपको शर्म नहीं आती। जो आपके नाम निहाद बरादर इस्लामी मुल्क हैं, वहां कोई शहरियत लेके तो फिर अली साहब ये बताइएगा कि ईरान ने भी जवाब दे दिया इसराइल के हमले के बाद, लेकिन क्या आपको लगता है कि जंग मजीद फैलेगी या कोई रोकने के लिए कोई किरदार अदा करेगा? यार जब तक हर किस्म का सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट का खत्म नहीं हुआ, इन्होंने जंग शुरू इसलिए तो नहीं किया है कि जल्दी से खत्म कर देने के लिए, इन्होंने शुरू किया है जंग जितना उनके आज सलाहियत है उसको तबाह करने के लिए। अगर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1-2 महीने लगे हैं वो चलते रहेंगे। दे हैव टू फिनिश, उनका काम यही है कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करें। तो ईरान की कैपेसिटी को आप हलाली साहब कैसे देखते हैं? यार आज पूरा दिन गुजर गया है, कोई जवाबी कार्रवाई तो नहीं हुई है। जो उन्होंने वो ड्रोन्स भेजे थे वो तो कहते हैं वो पता नहीं 1-2 भी नहीं पहुंचे हैं या क्या जो कुछ पता नहीं चलता है उसका क्या हुआ। इजरायली कहते हैं कि हमने सबको खत्म कर दिया। पूरी जो बिल्डिंग है ज़मीन दोज़ हो गई है। आप देखिए किस तरह का नज़ारा है, पूरी की जो पूरी इमारत है ज़मीन दोज़ हो चुकी है, इमारत रहने के लायक नहीं बची है। ये इमारत देखिए, पूरी बिल्डिंग का क्या हाल है, इस इमारत का देखिए, इस बिल्डिंग का देखिए, इसको देखिए, इसे देखिए। ये जो तमाम इमारतें हैं बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। और ऐसी तकरीबन हमारे पास 30 तस्वीरें हैं जो आज इजराइल से आई है और ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि ईरान ने मिसाइल हमले से कितनी बड़ी तबाही मचाई है, किस तरह क़यामत का मंजर है इजराइल में। आप इन तस्वीरों को देखिए तो खैर हॉस्पिटल की तस्वीर है, इस तस्वीर को देखिए, पूरी जो बिल्डिंग है, पूरा ये लंबा टावर है ऊंचा और ये पूरा टावर ज़मीन दोज़ हो रहा है। इस बिल्डिंग को देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, इसे देखिए, इस इमारत को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ख़तरनाक ज़लज़ला आया है और हर तरफ तबाही मची है। इस तस्वीर को तो आपने 2 दिन पहले देखा ही होगा, लेकिन अब ये नई तस्वीर आई है इजराइल से, जहां देखिए ये महिला बिस्तर लेकर सड़कों पर भाग रही है। यानी सोने की जगह भी इजराइल में लोगों को नहीं मिल रही है। और मैं आपको अब ये बताता हूँ कि CNN ने तज्जिया क्या क्या है और क्यों दुनिया में CNN के इस तज्जिया पर बहस हो रही है। क्योंकि ईरान के हालिया हमले ने इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इस हमले का इजराइल जो दर्द है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से CNN ने ये अपना एक तज्जिया किया है। CNN मशहूर मीडिया हाउस है और इसने लिखा है, इजराइल अंडर एस्टिमेटेड ईरान्स एबिलिटी टू रीग्रुप आफ्टर मिलिट्री कमांडर्स किल्ड, एनालिस्ट सेज। तज्जिया निगारों का कहना है कि जब 13 जून की रात में इजराइल ने ईरान पर हमला किया, इजराइल इस हमले की तैयारी पिछले 8 महीने से कर रहा था। अमेरिका से उसने मदद लिया था। अमेरिका का जो जंगी जहाज है F-35, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने खामोशी के साथ इसको इजराइल के लिए तैयार किया कि वो इजराइल से जाकर ईरान पर हमला करे, वापस आ जाए, बीच में उसमें तेल डालने की जरूरत भी ना पड़े। इस तरह का दावा किया जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है बाद में कभी इस पर बातचीत करेंगे। तो पूरा प्लान सीक्रेट रखा गया था। उसके अलावा इजराइल ने ईरान में जासूसी का बहुत बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया था। खबरें सामने आई है कि पूरा का पूरा मिसाइल बनाने का कारखाना इजराइल ने ईरान में कायम कर लिया था। ड्रोन को कैसे असम्बल किया जाएगा उसका वर्कशॉप ईरान में इजराइल ने कायम कर लिया था। जो इजरायली मिसाइल है उसको ईरान में ट्रकों के ज़रिए से इधर से उधर मुंतकिल किया जा रहा था। ये पूरी तैयारी इजराइल ने ईरान में कर रखी थी। जासूसों के ज़रिए तमाम अहम रहनुमा की उसे लोकेशन मिल गई थी और उसके बाद 13 जून को इजराइल ने ईरान पर पूरी तैयारी के साथ हमला किया। एक साथ 200 से ज़्यादा जंगी जहाज़ों से ईरान के फ़िज़ा पर इजराइल ने उड़ना शुरू कर दिया और तमाम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया, निशाना बनाया। और इस हमले के बाद इजराइल को ये लगा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं रख पाएगा ईरान, क्योंकि इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमला कर दिया था। ईरान का जो मिसाइल का कारखाना है जहाँ ईरान के
के मिसाइल रखे हुए थे उसको इजराइल ने टारगेट करने का दावा किया था, एटमी पावर प्लांट्स को टारगेट करने का, उसको निशाना बनाने का ईरान ने दावा किया था। तमाम आर्मी जो ईरान की है उन तमाम के चीफ को इजराइल ने शहीद कर दिया, चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद कर दिया, एटमी हथियारों के जो साइंटिस्ट है उनको शहीद कर दिया। और इसके बाद इजराइल को यही लगा कि वो मजबूत हो चुका है और उसने एयरफोर्स की लड़ाई में, उसने फ़िज़ाई लड़ाई में ईरान को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। और ईरान ने भी जब अगले 15 घंटे तक इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई नहीं की तो ईरान की जो खुद एतमादी है वो और ज़्यादा बूस्ट कर गई। अमेरिका का लबो लहजा भी बदल गया और फिर अमेरिका ने इजराइल के मुकाबले में ईरान को ही धमकी देना शुरू कर दिया। मोहब्बत में भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मुतफ़िका बयान से इख्तलाफ कर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की थी, मगर भारत ने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के हवाले से हमारी एक खौफनाक झड़प भारत के साथ हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम ईरान की वो गलती न करें जो ईरान ने तज़वीराती सब्र या स्ट्रेटेजिक पेशेंस के नाम पर किया, कि ये जानते हुए भी दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है, जानते हुए भी उसके तैयारे फजा में बुलंद हो चुके हैं, जानते हुए भी किसी वक्त वो हमला कर सकता है। तमाम सिग्नल मिलने के बावजूद ईरान इंतजार करता रहा कि दुश्मन पहले हमला करेगा। पाकिस्तान की भी अनफॉर्चुनेटली यही हिकमत अमली है। दुश्मन जब भी हमला करता है हमेशा उसके आसार और निशानियां आपको पहले मिल जाती हैं। मानने वाली बात है और नजर आने वाली बात है कि ईरानी हुकूमत और ईरानी जो पूरी मशीन है गवर्नेंस की और वॉर मशीन, उसको इन्फिल्ट्रेट किया है इजराइल। उसके जासूस उसमें घुसे हुए हैं, उसने एग्जैक्टली इतनी अंदर से इंफॉर्मेशन जाके सेट होती है, इसका मतलब और इतने हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया। मतलब ये है कि ये कोई ख्याली बात नहीं है कि उनकी इंग्रेस थी उसके अंदर, वो उसके अंदर घुसे हुए थे, उनके जासूस उसके अंदर घुसे हुए थे। और हमेशा से हमारी तो तारीख भी इन्हीं गद्दारियों पे से मुज़य्यन तारीख है, तो वो गद्दारियां साफ नजर आ रही हैं। और सॉरी मैं अपनी बात काटूं, नितिन राव ये बात अब मान रहे हैं कि ये हम 6 महीने से इरादा करके बैठे हुए थे। देखिए हमारे आज तक जंगों में कितने जर्नैल मरे हैं बताएं मुझे। कभी जर्नैल आगे नहीं जाएगा कुर्बानी देने के लिए। हाँ, शराब के नशे में धुत हथियार डालने का हुक्म जरूर दे देगा, पतलून उतार के 71 में भारत के हवाले करने में आगे होगा एक जर्नैल। इस जंग को बुनियाद बना के फौज अपने इक़्तिदार को मजीद तगड़ा करेगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अब पता है क्या कहेंगे कि अब अगर फौज कमजोर हुई, फौज पीछे हटी, फौज ने जमहूरियत आने दी, तो इसराइल का अगला टारगेट तो पाकिस्तान है। अब इसको बुनियाद बना के अगले 10-20 साल फौज मजीद हुकूमत करेगी। भारत के साथ जंग को भी इस्तेमाल किया आपको गुलाम बनाने के लिए, इस जंग को भी आपको गुलाम मजीद बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको डराएंगे और कहेंगे कि देखें ना, इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है, हम अगर तगड़े ना हुए, फौज अगर मजबूत ना हुई, फौज ने ये ना किया, फौज ने यूं ना किया, तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। मीर साहब, कोई भी जंग हो उसके जो खुदा न खास्ता कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो को अच्छे नहीं होते, चाहे वो छोटी जंग हो या बड़ी जंग हो। आपने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट देखा, रियल टाइम में तो वो 6 मई की रात से 10 मई की सुबह तक था। इसी तरह ये जो एक इनकी यूएस की और ईरान की जो डिप्लोमेटिक चैनल चल रहा था वो प्राइमरीली इस पे फोकस था कि जी ईरान अपने आप को डी न्यूक्लियाइज करे और तमाम फैसिलिटीज़ को ख़त्म करे। और इस हवाले से इनके करीबन 5 राउंड्स हुए हैं, मस्कत में भी हुए, रोम में भी, ओमान की एम्बेसी में हुआ, फिर हुआ। और मुझे दोनों वज़ीर ख़ारजा, उनकी मेहरबानी है, ओमान के भी और ईरान के भी, मुझे उन्होंने लूप में रखा हुआ था कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। अभी जो डिटेल मीटिंग इनकी थी वो 15 को ड्यू थी, 15 जून को जी। और व्हाट वी से कि जी डेवल्स इन डिटेल, तो इसमें वो वर्किंग ग्रुप पहले लगा हुआ था और इनकी अब सीरियस मीटिंग होनी थी, क्योंकि ईरान का अपना एक स्टैंस है कि जी हम किसी किस्म की कंडीशन या जो ओवरसाइट रखना चाहती है ग्लोबल कम्युनिटी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, वो तो हमें कबूल है, लेकिन हमें टोटल एनरिचमेंट ज़ीरो करने का कहना और हमारा न्यूक्लियर जो सारी इस्टेब्लिशमेंट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश या डिस्ट्रॉय करने का कहना, वो उनको काबिल कबूल नहीं है। यानी दिस इज़ द कोर प्रॉब्लम जो कि इनमें आपस में चल रही थी।
تو آنن فانن 15 تاریخ کی میٹنگ سے پہلے 13 کی صبح جب اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، تو ہمارے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ ایک ہمسایہ ملک بھی ہے، اسلامک ملک بھی ہے، ہم ای سی او کے اکٹھے ممبر بھی ہیں، جو آر سی ڈی کا بھی ہوتا تھا، ایران، ترکی اور پاکستان، پھر کنورٹ ہو کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس آئیں تو ای سی او بن گیا، اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن۔ تو یہ جو ساری ہماری ایک بھائی چارے کی دہائیوں کی جو ایک ہسٹری ہے، ہمارا بحیثیت مسلمان بھی یہ فرض تھا، تو ہم نے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ جو ہی یہ حملہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے ہم نے فارن آفس نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی اور اس کو کنڈیم کیا۔